خبر ہے
ملا سکتی ہوں، شام کے تخت کو مٹی میں ملا سکتی ہوں، شام کے تخت کو مٹی میں ملا سکتی ہوں۔ آسمانی زندگی پر یعنی عرض نے اس قدر ماتم کیا بدعت کے خیبر ہل گئے۔ آسمانی زندگی پر قدسیان عرض نے اس قدر ماتم کیا بدعت کے خیبر ہل گئے، اور عاشق شبیر دنیا سے اٹھا جنت گیا، جیسے اس کو حضرت جبریل کے پر فرمائے کہ آسمان زمین سے آسمان تک ساری دولت فاطمہ کی ہے۔ خدا حاکم تو ہے لیکن حکومت فاطمہ کی ہے۔ زمین سے آسمان تک ساری دولت فاطمہ کی ہے، خدا حاکم تو ہے لیکن حکومت فاطمہ کی ہے۔ اور باغ فدق کے لوٹنے والوں سے پیغمبر نے فرمایا جہنم میں چلے جاؤ، یہ جنت فاطمہ کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على والإكرام على سيدنا محمد صلى الله في كل موجود في كل دار ويهدي صاحب الوالد والمحرم المحمود اسمه مقدس مطهر مكرم في ذلك الحرم شمس الزهراء والزجاج والدوام والسرور والشفيع والعلم سائر والذل والكرم والله واسع بالجود والكرم والجواد سيدة المنتهى مقام الله وقوسين سيد الصلاة نبي العالمين إمام الهداية وسيلتنا وفقراء محبوب المشرقين والمغربين يكفي أحسن والحسين بالإخلاص محمد ووسائله وشجاعته وطهارته وسخاوته وجلالته وولايته وعظمته وعطشه ومولاه فقد قال سبحانه في كتابه وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا وذكروا عباد الله سواء
صاحب خانہ صاحب یاسین وہ رسول جس کے لیے خدا نے شاعر بنایا یہ بنا محمد رسول وہ رسول کے جس کے لیے ارشاد فرمایا کہ بنا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وہ رسول جس کے لیے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وہی کائنات کا سب سے بڑا رسول یہ کہہ دیا جائے کہ یہ وہ رسول ہے کہ جس کی پیشانی کے قطروں سے نبی کو جنم ملتا ہے اتنا بڑا رسول ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ذکر و علی کی عبادت علی کا ذکر کرنا عبادت ہے عزیزوں دیکھیے اس رسول کے لیے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى یہ رسول وہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے کوئی کلام بھی نہیں کرتا بلکہ وہی کہتا ہے جو وہی جاتی ہے تو اس کا مطلب تو یہ سمجھ میں آیا یہی ہوا ظاہراً کہ اب یہ رسول جو بھی کچھ کہے گا یا جو بھی کچھ کرے گا وہ اپنی خواہش نفسانی سے نہیں کرے گا اپنی مرضی سے نہیں کرے گا بلکہ اس رسول کا جو بھی قول ہوگا جو بھی فعل ہوگا جو بھی عمل ہوگا وہ من جانب اللہ ہوگا یعنی کہ اب یہ معاملہ طے ہو گیا کہ یہ رسول نہ اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہے نہ اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى یہ میرا رسول کوئی کلام نہیں کرتا کچھ نہیں کہتا بلکہ وہی کہتا ہے جو وہی بھیجی جاتی ہے تو میں جملوں کو لفظوں کو بدل کر یہ کہہ دوں کہ معاملہ تو طے ہو گیا کہ اب یہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہے گا کچھ نہیں کرے گا جو کرتا ہے جو کہتا ہے اللہ کی مرضی سے کہتا ہے تو میں جملہ کہہ دوں عزیزوں کہ یاد رکھنا کہ اب اگر یہ رسول کسی کے لیے سجدے کو طول دیتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے کسی کو اپنے دوست پہ اٹھاتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے کسی کو علم دیتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے کسی سے علم لیتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے کسی کو بزم میں بٹھاتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے کسی کو بزم سے اٹھا دیتا ہے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے کیوں اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى میرا رسول میرا حبیب کچھ نہیں کہتا کچھ نہیں کرتا بلکہ وہی کہتا ہے جو وہی بھیجی جاتی ہے اور عزیزوں دیکھیے دو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ یہ ذات علی کیا ہے اس کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ذکر و مجالس میں ذکر علی ابن ابی طالب اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے آپ دفعہ رسالت میں دستے جب جوڑ کے سوال کریں کہ یا رسول اللہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ ذکر و مجالس میں ذکر علی ابن ابی طالب اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ یہ کہہ دیتے کہ ذکر و مجالس میں ذکر آدم اپنی مجلسوں کو زینت دو آدم کے ذکر سے یا یہ کہہ دیتے کہ ذکر و مجالس میں ذکر نوح اپنی مجلسوں کو زینت دو نوح کے ذکر سے یا موسیٰ کے ذکر سے یا عیسیٰ کے ذکر سے یا رسول اللہ ذکر تو ہو جاتا یہ لفظ علی کی قید کیوں لگائی کہ زین و مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے تو آواز رسالت آئی کہ نادان اگر میں یہ کہتا کہ زین و مجالسکم بذکر آدم تو آج تمہاری مجلسوں میں اس فرش عزا پر ذکر آدم ہوتا ذکر نوح نہ ہوتا ذکر موسیٰ ہوتا ذکر عیسیٰ نہ ہوتا لہٰذا میں نے ایسے کے ذکر کو معیار مجلس قرار دیا ہے کہ جس کے اندر سب ذکر سمٹ کر آ گئے ہوں میں نے کہا یا رسول اللہ ایسا یہ کون سی ذات ہے اس میں کون سے ذکر سمٹ کر آ گئے پھر آواز رسالت آئی کہ نادان کیا تو نے میری مشہور معروف حدیث نہیں سنی یا رسول اللہ کون سی حدیث کیا تو نے معلوم نہیں ہے تجھے پتہ نہیں ہے میں نے ارشاد فرمایا ہے کہ زین و مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب اپنی مجلسوں کو زینت دو
علی کے ذکر سے یا رسول اللہ معاملہ تو الجھ گیا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ علی کے ذکر کو معیار مجلس کیوں قرار دیا ہے؟ آدم کے لیے کیوں نہیں کہا؟ موسیٰ کے لیے کیوں نہیں کہا؟ عیسیٰ کے لیے کیوں نہیں کہا؟ تو عجب نہیں کہ آواز رسالت آئی کہ نادان غور کر، تجھے پتہ چل جائے گا۔ عزیزو، جب میں نے تاریخ کو اٹھا کے دیکھا تو تاریخ نے بتایا کہ اس پوری کائنات میں ایک ذات علی وہ ہے کہ جس کے لیے پیغمبر نے کہا کہ من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في تقواه والى موسى في هيبته والى يوسف في جماله فلينظر الى وجه علی ابن ابی طالب۔ پیغمبر نے کہا کہ جس کو ایک آدم کا علم، نوح کا تقوی، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا ظہور، ایوب کا صبر، محمد کا جلال، یوسف کا کمال دیکھنا ہو، وہ تنہا علی کے چہرے کی طرف نظر کر لے۔ آدم کا علم بھی ملے گا، نوح کا تقویٰ بھی ملے گا، موسیٰ کی ہیبت بھی ملے گی۔ اور عزیزو دیکھیے، یہ ذات علی وہ ذات ہے کہ دیکھیے جسے اللہ بناتا ہے اس میں اور جسے بندے بناتے ہیں اس میں اگر آپ نگاہ عمیق سے دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے اللہ بناتا ہے تو اپنے جیسا بناتا ہے، اور جسے بندے بناتے ہیں تو اپنے جیسا بناتے ہیں۔ اور واضح کر دوں، جسے اللہ بناتا ہے اپنے جیسا بناتا ہے، جسے بندے بناتے ہیں تو اپنے جیسا بناتے ہیں، اور جسے اللہ بنا دیتا ہے وہ بنانے کے بعد پچھتاتا نہیں ہے۔ 5 سال کی طرح، پبلک کی طرح 5 سال تک پچھتاتا رہتا ہے کہ جسے ووٹوں کو کے ذریعے سے بنا دیا اور کوئی کام نہ کیا تو کم سے کم ووٹ دینے کے بعد بندہ 5 سال تک تو پچھتاتا ہی ہے۔ اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے یار، جسے بنا دیا وہ بنا دیا۔ تو عزیزو، جسے اللہ بناتا ہے اپنے جیسا بناتا ہے، جسے بندے بناتے ہیں اپنے جیسا بناتے ہیں، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ جسے اللہ بناتا ہے وہ مختار کائنات ہوتا ہے، اور جسے بندے بناتے ہیں وہ محتاج ہوتا ہے۔ پھر لفظوں کو بدل کر کہہ دوں، یاد رکھنا دونوں میں فرق ہے بہت بڑا، اور وہ فرق یہ ہے کہ جسے بندے بناتے ہیں تو چھپ کے بناتے ہیں، مکان میں بناتے ہیں، جسے بندے بناتے ہیں چھپ کے بناتے ہیں، مکان میں بناتے ہیں، لیکن خدا کی قسم جسے اللہ بناتا ہے کھلے میدان میں بناتا ہے۔ صلوات بھیج دے۔ بندے بناتے ہیں وہ اتنا مجبور ہوتا ہے جسے بندے بناتے ہیں اتنا مجبور ہوتا ہے کہ جب منبر پہ آتا ہے تو یہی جملہ کہتا ہے، عقیلونی لوگوں مجھے سیدھا کر دینا۔ وکاس کر رہا ہوں، جسے بندے بناتے ہیں جب وہ منبر پہ آتا ہے تو یہی کہتا ہے، عقیلونی لوگوں مجھے سیدھا کر دینا۔ لیکن خدا کی قسم سلام ذر علی کو اور علی کو کہ جسے اللہ بناتا ہے جب وہ منبر پہ آتا ہے تو سلونی صلوات بھیج دے گا۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اپنے جیسا بناتا ہے اور اللہ پبلک کی طرح بچاتا نہیں۔ 1,24,000 بنائے
कभी पछताने का इजहार किया नहीं किया। जिसे बना दिया उसे बना दिया। अजीजों, जिसे अल्लाह बनाता है अपने जैसा, जिसे बंदे बनाते हैं अपने जैसा बनाते हैं। अब आइए एक झलक कि अल्लाह किसे बनाता है और बंदे किसे बनाते हैं। तारीख बताती है कि जब खिलाफत राशिदा तस्वीर हो रही थी तो लोगों ने लाख चाहा कि अली से मिंबर छीन लिया जाए। वो एक मकबूला है ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चले, और ये हकीकत है। अल्लाह जिसको इज्जत दे दे उससे कोई ले नहीं सकता। तारीख बताती है कि जब खिलाफत राशिदा तकसीम हो रही थी और खलीफा अव्वल को खिलाफत मिली तो उन्होंने एहतराम रिसालत करते हुए उस जगह पे नहीं बैठे जहाँ पर पैगंबर इस्लाम बैठकर खुतबा दिया करते, बल्कि एहतराम रिसालत किया, उस जगह को छोड़ा, मिंबर का एक जीना छोड़ के बैठे। अच्छा, तारीख आगे बढ़ी कि जब आगे सिलसिला बढ़ा तो उन्होंने दोनों का एहतराम किया। मिंबर के तीसरे जीने पर बैठे, 2 जीने को छोड़ा। जब उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ा तो उन्होंने मिंबर के 3 जीने छोड़े, 4थे जीने पर बैठा। अब अजीजों, मुझे इंसाफ से बताइए कि अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता तो इसके बाद जो आता वो कहाँ बैठता? जमीन में बैठता। तो खुदा न खास्ता अगर उसके बाद कोई आ जाता तो कहाँ बैठता? जमीन में गड्ढा खोद के बैठना पड़ता। और ये खिलाफत चली गई थी गड्ढे में। सलाम करो अली को और अबू तालिब को और अबू तालिब के लाल को अली को कि अली ने खिलाफत को गड्ढे में जाने से बचा लिया। तारीख के फिक्र हैं, लफ्ज़े हैं, यही लिखा है कि जब मौला कायनात को खिलाफत मिली तो एक मर्तबा अबू तालिब का लाल मजमे से उठा, और जैसे ही मजमे से उठा पूरे मजमे की तजस्सुसी निगाहें मेरे मौला के कदमों पर हैं, और लोग सोच रहे हैं कि हमने तो अली के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। अब देखते हैं अली कहाँ बैठेंगे, अब देखते हैं अली कहाँ बैठेंगे। अजीजों, तारीख बताती है कि मौला कायनात मजमे से उठे और उठने के बाद खिरामा मिंबर के करीब पहुंचे, और पहुंचने के बाद मिंबर के पहले जीने पे कदम रखा, मिंबर के दूसरे जीने पे कदम रखा, मिंबर के तीसरे जीने पे कदम रखा। लफ्जों को बदल कर कह दूं कि मिंबर का पहला जीना भी अपने पांव के नीचे कुचला, मिंबर के दूसरे जीने को भी अपने पांव के नीचे कुचला, और उसके बाद उस जगह पे जाकर बैठे जहां पैगंबर इस्लाम बैठकर खुतबा दिया करते थे। और बैठने के बाद कहा, अय्युहन्नास, खुदा का शुक्र करो कि आज हक अपने मरकज में आ गए। खुदा का शुक्र करो कि आज हक अपने मरकज पे आ गया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हक इससे पहले अपने मरकज पे नहीं था। अब जैसे ही मौला कायनात उस जगह पर बैठे जहां पैगंबर बैठकर खुतबा देते थे तो हर मजमे में कोई ना कोई दिलजला तो जरूर होता है। पूरे मजमे से एक दिलजला उठा और उठने के बाद कहता है कि या अली, आपने तो रीस बदल दी, आपने तो हिफ्ज़े मरातिब का कोई ख्याल ही नहीं किया, आपने तो एहतराम रिसालत ही नहीं किया। क्या मतलब कि या अली, मतलब ये है कि उसूलन तो आपको मिंबर के सबसे निचले जीने पर बैठना चाहिए था। या अली, आप तो उस जगह पर जाकर बैठे जहां रसूलुल्लाह बैठा करते थे। तो अजीजों, गजब के आलम में मेरा मौला फरमाता है, ओ बदबख्त बैठ जा, ये तो लकड़ी का मिंबर है। अरे मुझे पहचानो, मेरे पांव तो मोहरे नबूवत को जीना बना। सलावत भेज दे। तारीख बताती है कि मस्जिद नबवी मजमे से भरी हुई है, खुतबा जारी है, मौला कायनात मिंबर पर तशरीफ फरमा है। ऐसे में तरे मस्जिद से अज़दहा दाखिल हुआ। अभी तो सबकी जबान कैंची हुई तरीके से चल रही थी। यानी आप कहाँ बैठ गए, आपने हिफ्ज़े मरातिब का कोई ख्याल ही नहीं किया, आपने इकराम रिसालत ही नहीं किया। और जैसे ही अज़दहे को तरे मस्जिद से आता हुआ देखा
सब ऐसे बैठ गए जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। मौला ने फरमाया कि खामोश बैठो, इसे मेरे करीब आने दो। सबने हाथ जोड़े कि जा भाई तू चला जा। अजदहा खिरामा मंबर के करीब आया, मेरे मौला के पैरों को बोसा किया, उसने मिंबर पर पहुंचा और अपना दहन मौला के कान के करीब किया। उसने मौला से कुछ कहा, मौला ने उसको कुछ जवाब दिया। लहराता हुआ पुश्ते मिंबर से नीचे उतरा, मौला के पैरों को बोसा किया, फिर लहराता हुआ वापस चला गया। जब वापस चला गया फिर सबकी जबान कैंची के तरीके से चलने लगी। याली याली ये अजदहा आपके पास क्या करने आया था? आपने इसे क्या कहा? इसने आपसे क्या कहा? आपने इसको क्या जवाब दिया? इसने आपसे क्या कहा? मौला ने फरमाया कि खामोश बैठो, ये कोई अजदा वजदा नहीं था। कहा मौला फिर? का ये कौमे जिन से एक जिन था। लीजिए अभी तक तो शेर था और सबा शेर, यानी ये जिन आपके पास क्या करने के लिए आया था? ये क्या कह रहा था आपसे? खलीफा रसूल, जानशीन रसूल, वारिस रसूल किसे कहते हैं? मासूम फरमाते हैं कि खलीफा रसूल, जानशीन रसूल, वारिस रसूल उसे कहते हैं कि उससे जिस जबान में सवाल किया जाए उसी जबान में जवाब दे दे। अरे चलो मैं मानता हूँ कि अजदही की जबान से न वाकिफ थे, लेकिन अली ने जो जवाब दिया, जो सवाल किया, जो उससे कहा, वही समझ लेते। याली आपके पास क्या करने के लिए आया था? का ये कौमे जिन से एक जिन था। का यानी ये क्यों आया था? क्या तुम्हें मालूम नहीं इसका बाप मर गया? का फिर कहा तमाम जिन्नातों ने इसको अपना सरदार तस्लीम किया है। लफ्जों को बदल कर कह दूं का इसका बाप मर गया, लेकिन कुछ लोगों ने एक कमरे में सकीफा की तरीके से मीटिंग करके इसे अपना सरदार, अपना खलीफा मुंतखब कर लिया, मगर ये सबके इजमा को ठोकर मार के मेरे कदमों में इजाजत लेने आया है। मौला इजाजत है, सरदारी कबूल कर लूं। अजीजों वाक़या तो तमाम हो गया। जुमला आपके हवाले जब मैंने तारीख में पढ़ा तो हाथों को जोड़ के कहा कि अजदहे तेरी बसीरत पे कुर्बान, ए अजदहे तेरी बसीरत पे लाखों सलाम। क्यों? इसलिए कि आज तूने अली के कदमों में आके इजाजत मांग के ये साबित कर दिया कि अगर पूरी कायनात भी, अगर पूरी दुनिया भी किसी को अपना सरदार मुंतखब कर ले तो जब तक अली का अली इजाजत ना दे वो हुकूमत जायज नहीं होती है। सलाम कहते नहीं होती। तो ये है अली जिसको अल्लाह ने बनाया। और अज़ीज़ों जिसे अल्लाह बनाता है उसे अपने जैसा ही बनाता है। जिसे बंदे बनाते हैं उसे अपने जैसा बनाते हैं। अगर आप निगाहें मीर से देखें तो अज़ीज़ों आपको मालूम होगा कि मौलाए कायनात की ज़ात कोई मामूली ज़ात नहीं। अली किसी फर्द का नाम नहीं बल्कि खुदारियत का नाम नहीं, शख्स का नाम अली नहीं, शख्सियत का नाम। अज़ीज़ों ये अली तो वो है कि जिसके जिक्र से शजरे चेहरों पर टाइप हो जाया करते हैं। मैं आपकी बारगाह में अर्ज़ कर रहा था कि जिसे अल्लाह बनाता है अपने जैसा बनाता है, जिसे बंदे बनाते हैं अपने जैसा बनाते हैं। तारीख बताती है कि एक शख्स खिदमत पैगंबर इस्लाम में हाजिर होता है। हाजिर होने के बाद कहा कि या रसूलल्लाह मैं चाहता हूँ अपनी कौम वालों को, बस्ती वालों को मुसलमान बनाऊं। ठीक है जाओ।
तबलीग करो। चला, बस में रिसालत से उठा और उठने के बाद थोड़ी सी दूर गया, फिर वापस आया। वापस आने के बाद कहता है कि या रसूलल्लाह, ये बताइए कि जब मैं अपनी कौम वालों को, बस्ती वालों को मुसलमान बनाऊंगा तो आप मुझे इनाम क्या देंगे? पैगम्बर फिर मुस्कुराए, फरमाया कि 80 ऊँट लालच वाहियात से भरे हुए, सोने चांदी से भरे हुए। ठीक है, फिर उठा, फिर वापस आया। चूँकि ये जो शक का कीड़ा होता है ना, ये जिसको भी लग जाए वो जल्दी से आसानी से ख़त्म नहीं होता। किसी भी मामला का शक हो, जब आदमी किसी मामले में मशरूक हो जाता है तो ये बीमारी बहुत खतरनाक होती है। वापस आया, वापस आने के बाद कहता है कि या रसूलल्लाह, फर्ज कीजिए, अब एक एक अपने नौजवानों की, बुजुर्गों की भरपूर तवज्जो चाहता हूँ जो शायद कोई पैगाम आप तक पहुँचा सकूँ। खिदमत पैगम्बर में फिर वापस आया और वापस आने के बाद कहा कि या रसूलल्लाह, फर्ज कीजिए कि मैं तबलीग के बाद आया और खुदा में खास्ता आप न रहे तो वो इनाम मुझे कौन देगा? 80 का मामला है, सोने चांदी से भरे हुए। तो पैगम्बर इस्लाम का जुमला सुन लीजिए, कितना अच्छा जुमला पैगम्बर ने फरमाया है। क्या कहा या रसूलल्लाह, फर्ज कीजिए कि मैं तबलीग करके लोगों को मुसलमान बना के वापस आया और खुदा न खास्ता आप न रहे तो वो इनाम मुझे कौन देगा? 80 ऊँट। तो पैगम्बर ने फरमाया कि मेरे बाद वो इनाम हक के वली से लेना। वो इनाम हक के वली से लेना। का ठीक है, फिर चला, फिर वापस आया और हाथों को जोड़ के इस मर्तबा कहता है कि या रसूलल्लाह, माफ कीजिए, अगर आपको जहमत ना हो तो ये चीज मुझे लिख कर दे दीजिए। का लिखवाने की हाजत है? लिखवाना चाहते हो तो जाओ, जल्दी से कागज कलम ले आओ। वो जल्दी से महल्ले में पहुंचा, बस्ती में पहुंचा, कागज लेके आया, कलम लेके आया। सहाबा बैठे हुए थे मजमे रिसालत में। पैगंबर ने सहाबा को देख के मुस्कुरा के फरमाया कि सुनो, जिसे रसूल से कुछ लेना होता है वो रसूल को कागज कलम दे देता है। जिसे रसूल से कुछ लेना होता है तो कागज कलम दे देता है। पैगंबर ने कागज कलम लिया, जल्दी जल्दी लिखा कि जब ये अबू समसाम अपनी कौम वालों को, बस्ती वालों को मुसलमान बना के आएगा तो इसे 80 ऊँट लालो जवाहरात से भरे हुए, सोने चांदी से लदे हुए दिए जाएंगे। तारीख बताती है कि वो तहरीर रसूल को लेके अपनी जेब में रख के चला गया। कुछ अरसे के बाद वापस आया तो तबलीग करने के बाद अपनी बस्ती वालों को, कौम वालों को मुसलमान बनाया, कलमा पढ़वाया और जब इनाम के लिए वापस पहुंचा तो दूसरे किसी से पूछा कि भाई मुझे रसूलुल्लाह से मिलना है। कभी वो चले गए। कहाँ चले गए? कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए? क्या उनका कोई वजीर, खलीफा, कानिशी कोई तो होगा। अब अजीज़ो तारीख बताती है कि एक साहब ने कहा कि हाँ, सामने दरबार में बैठे हैं, चले जाइए। तब इस तरफ जाऊँ? क्या सामने दरबार में देखिएगा दर पे एक तख्ता बैठा हुआ है। अब हो सकता है कि नैयर भाई हमारे कहें कि मौलवी साहब ये तख्ता किस बीमारी का नाम है, तो नैयर भाई हमेशा याद रखिएगा कि ये मिंबर रसूल है और मिंबर का एहतराम भी जरूरी है। इस मिंबर से तैयब और ताहिर नाम लिए जाते हैं, नजिस नाम तो नहीं लिए जाते। तहरीर रसूल को लिया, दरबार रिसालत में हाजिर हुआ, सलाम किया, जवाब सलाम मिला। क्यों भाई, कैसे आए हो? कहा कि मुझे रसूलुल्लाह से मिलना था। कब वो तो चले गए, क्या मामला है, क्यों आए हो? कहा कि वो मैं तबलीग करके आया हूँ। क्या फिर क्या हुआ? हमने कहा था तबलीग करने के लिए। क्या सरकार आपने तो नहीं कहा था, आपके रसूल ने कहा था, सच्चे रसूल ने कहा था। कहा होगा, मामला क्या है? क्या सरकार उन्होंने तबलीग के साथ साथ ये भी कहा था कि जब अबू समसाम अपनी कौम वालों को, बस्ती वालों को मुसलमान बना के आएगा तो उसे 80 ऊँट दिए जाएंगे, सोने चांदी से भरे हुए। अब हजरत ने मुस्कुरा के फरमाया कि ले, खजाना तो पहले ही से खाली है, ऊपर से तू आ गया। खजाना तो पहले ही से खाली है, ऊपर से तू आ गया है। क्या सबूत है, क्या प्रूफ है कि रसूल ने कहा था कि तुझे 80 ऊँट सोने चांदी से भरे हुए दिए जाएंगे? तो उन्होंने तहरीर रसूल को निकालने के बाद कहा कि लीजिए सरकार, आप पढ़ लीजिए। अब सरकार ने बाद वफात रसूल
तख्त पे बैठे हुए हैं। सरकार ने कभी ऐसे देखा, कभी ऐसे देखा। जब तहरीर रसूल ना पढ़ पाए तो उन्होंने आगे बढ़ाया। अब जब आगे वालों को मिली तो उन्होंने भी कभी ऐसे मुतालिया किया, कभी ऐसे किया, और उसके बाद फिर आगे बढ़ी। अब उन्होंने हाथों को जोड़ के दोनों की तरफ कहा कि भाई क्यों एक दूसरे को शर्मिंदा कर रहे हो? अरे कह दो हम सबके सब एक जैसे हैं, हम सबके सब तो एक ही जैसे हैं। अब उनमें से एक ने कहा, ए अबू शमशान, क्या पढ़ना पढ़ाना, हमें तुम्हारी बात पे यकीन है, तुम ही पढ़ के सुना दो, तुम ही बता दो कि इसमें क्या लिखा है। अबू शमशान ने तहरीर रसूल को लिया और मुस्कुरा के फरमाया कि इसमें तहरीर है कि जब अबू शमशान अपनी कौम वालों को, बस्ती वालों को मुसलमान बना के आएगा, कलमा पढ़ा के आएगा, तो इसे 80 ऊंट सोने चांदी से भरे हुए लदे हुए दिए जाएंगे। अब अजीजों, दरबार रिसालत में सन्नाटा तारी है, कोई तहरीर रसूल पढ़ने वाला नहीं। अब मैं सवाल आपसे ये करता हूं कि मुझे इंसाफ से बताइए कि अगर आज दरबार रिसालत में अबू शमशान का वादा पूरा ना हो तो ये दीन के मामले में क्या सोचेगा, शरीयत के मामले में क्या सोचेगा कि कैसा रसूल था, वादा करके चला गया, कोई वादा पूरा करने वाला नहीं है। कैसा दीन है, कैसी शरीयत है, कैसा इस्लाम है। तारीख की लफ्ज़ें हैं कि खुद कलामी करता हुआ, बड़बड़ाता हुआ दरबार रिसालत से बाहर आया तो क्या देखा कि सामने से जनाब सलमान नजर आए। जनाब सलमान ने जैसे ही अबू शमशान को देखा तो क्या देखा कि बड़बड़ा रहे हैं अबू शमशान और खुद कलामी कर रहे हैं और कहे जा रहे हैं कि ऐसे को तख्ते खिलाफत पे बिठा दिया कि कोई वादे वफाते रसूल, तहरीर रसूल पढ़ने वाला नहीं है, ऐसे को हाकिम बना दिया। अजीजों, तारीख बताती है कि जनाब सलमान आगे बढ़े, सलाम किया, जवाब सलाम मिला और पूछा मुस्कुरा के, ए अबू शमशान, क्यों गुस्से में हो, क्यों बड़बड़ा रहे हो? क्या गुस्से की तो बात ही है? अरे मेरा यहाँ पे कोई वादा पूरा करने वाला नहीं है, कर्जे नबी का उधार कोई चुकाने वाला नहीं है। एक मर्तबा जनाब सलमान मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद कहा कि अबू शमशान, असल में थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा तो महसूस होगी, सलमान असल में थोड़ी सी गलती तुमसे हो गई है। क्या कैसी गलती? क्या तुमने रॉन्ग नंबर डायल कर लिया है? ऐसे ज्यादा तो बात नहीं कर सकता। क्या तुमने रॉन्ग नंबर डायल किया है? क्या क्लियर कैसे होगा? क्या चलो मेरे साथ, आगे आगे सलमान, पीछे पीछे अबू शमशान। कहाँ पहुंचे? एक इधर कायनात में मिलता है दर अली। जैसे ही दर अली की जंजीर दर को हिलाया, अंदर से आवाज आई, ए सलमान, अबू शमशान को हमारा सलाम कह दो। ए सलमान, अबू शमशान को हमारा सलाम कह दो। जैसे ही अबू शमशान ने ये सुना कि अंदर से कोई कह रहा है, मुझे देखा नहीं, मेरा नाम जानता है, खुशी के मारे दिल में लड्डू फूटने लगे। क्यों? इसलिए अबू शमशान सोच रहा है कि एक जाहिल वो था कि जो तहरीर रसूल न पढ़ पाया, और एक ये है मुझे देखा नहीं, मेरा नाम जानता है। अभी अबू शमशान ये सोच रहे थे कि अंदर से फिर सदा आई, क्या? ए सलमान, अबू शमशान को आलू बहुत ज्यादा पसंद है, मस्जिद नबवी में लेके चलो, हम इनके लिए आलूओं का इंतजाम करते हैं। अब जैसे ही आलूओं का नाम आया तो अबू शमशान की स्पीड और बढ़ी, लगता है तो 101% मेरा काम बन जाएगा। क्यों? इसलिए कि एक वो था कि जो सामने तहरीर रसूल न पढ़ पाया, एक ये है नाम भी जानता है, मेरे खाने की ग़िज़ा को भी जानता है, लगता है मुझे जरूर मिल जाएंगे। अजीजों, इधर आपस में सलमान और अबू शमशान गुफ्तगू कर रहे हैं, अंदर से आवाज आई, सलमान, मस्जिद में जाके ऐलान आम कर दो कि जिसे ये देखना हो कि बाद वफाते रसूल कर्ज नबी का उधार कैसे चुकाया जाता है, वो कल बैरून मदीना आके देख ले। अजीजों, जनाबे सलमान अबू शमशान को लेके पहुंचे, ऐलान कर दिया गया पूरे मदीने में कि जिसे ये देखना हो कि बाद वफाते रसूल कर्ज नबी का उधार कैसे चुकाया जाता है, वो कल बैरून मदीना आके देख ले। सुबह नमदार हुई, जबने गफीर, नफ्सा नफ्सी का आलम, पैर रखने की जगह नहीं है। अजीजों, तारीख बताती है कि मौलाए कायनात ने अपने बेटे इमाम हसन को लिया, अपने बेटे इमाम हुसैन को साथ में लिया, लाने के बाद उस जगह पे पहुंचे जहां अबू शमशान खड़े थे, बैरून मदीना आ गए और आने के बाद एक मर्तबा तारीख बताती है कि मौला ने फरमाया, ये बेटा हसन जाओ
अपने नाना का वादा पूरा कर दो। बहुत तवज्जो अजीजों, पूरी मजलिस का माहसल आपके हवाले करने जा रहा हूँ, भरपूर तवज्जो चाह रहा हूँ। मौला ने कहा बेटा हसन जाओ अपने नाना का वादा पूरा करो। इमाम हसन उठे, एक हाथ में असा लिया, असा लेने के बाद एक पत्थर पे मस किया, पत्थर दो हिस्सों में तकसीम हुआ और तकसीम होने के बाद उस पत्थर की जगह से एक गार बनी, गार में से एक नाका निकलती है, उस नाके की मेहार को इमाम हसन ने लिया, अबू शमशान के हवाले किया और हवाले करने के बाद अबू शमशान से कहा, हे अबू शमशान मेहारे नाका को अपने हाथ में पकड़ और गिनती शुरू कर। अबू शमशान ने मेहारे नाका को पकड़ा, 1 2 3 4 5। गरज ये कि जब 80 नाका लालो जवाहरात से भरे हुए सोने चांदी से लदे हुए निकल गए तो एक मर्तबा अबू शमशान ने हाथों को जोड़ के कहा, मौला बस कीजिए, रसूल ने 80 कहा था, 80 नाका निकल गए। एक मर्तबा मेरे मौला ने उठ के फरमाया, ए अबू शमशान ये तेरी ईमानदारी है, ये तेरी खुददारी है कि तूने आज 80 के बाद बस कर दिया, अगर बस न करता तो कयामत अगर बस न करता तो कयामत तक मेरा बेटा हसन देता जाता, तू लेता जाता। 80 नाका लालो जवाहरात से भरे हुए सोने चांदी से लदे हुए अबू शमशान को मिले, मेहारे नाका को पकड़ के चलने लगे। मौला ने आवाज दी, ए अबू शमशान ठहर जाओ। अबू शमशान रुके, हाथों को जोड़ा, मौला को जसारत हो गई, तो गलती हो गई। कहा नहीं अबू शमशान, वो तहरीर रसूल जो तुम्हारी जेब में है मेरे हवाले कर दो। वो तहरीर रसूल जो तुम्हारे हवाले है वो मेरे हवाले कर दो। एक मर्तबा अबू शमशान ने हाथों को जोड़ लिया, मौला वापस तो कर दूंगा लेकिन एक सवाल है। पूछो क्या सवाल है? कहा मौला जब अल्लाह के रसूल ने तहरीर लिखी थी मैं मौजूद था, चंद एक सहाबा थे, रसूल अल्लाह थे, आप तो नहीं मौजूद थे, तो आपको कैसे पता चला कि अल्लाह के रसूल ने मुझे तहरीर लिख के दी है? अजीजों वाक़या तमाम हो गया, अबू शमशान की बात भी मुकम्मल हो गई। मगर अगर मैं उस दौर में होता तो अबू शमशान से ये जुमला जरूर कहता, ए अबू शमशान, अरे क्या आदम मारिफत की बात कर रहे हो? अरे उस अली से सवाल कर रहे हो तहरीर रसूल के लिए, अमा जिसकी तलवार 70 नस्लें देख के सलावत भेज दे। अगर अली ना हो, औलाद अली ना हो, ये अबू शमशान दीन के बारे में, शरीयत के बारे में, रसूल के बारे में, आले रसूल के बारे में क्या सोचना? हमारा पूरा करने वाला नहीं। इस्लाम का दिल था, शरीयत का दिल थी, रसूल की सदाकत पे हर पा जाता। रसूल कौन काम आया, यही तरीका कराना काम आया। एक मरहूम के सारे सवाल
मजलिस में आप लोग आते हैं, बड़े करीब से आते हो और बारे मजलिस अपने पिछले भी करो, लेकिन खुदा की कसम जब भी फैसले पे आया करो तो सोच के आया करो कि हम लोग बहुत करीब से आते हैं, लेकिन एक बीवी ऐसी है कि जो बहुत दूर से आती है, बहुत देर से आती है, काफी के लिए आती है। आपसे चंद आंसुओं का सवाल करेगा, आओ ज़रारो मेरे हुसैन के लिए अपनी आंखों से चंद आंसुओं का देखो, जाकिर किसी को रुलाता नहीं, मेरे काम रुलाने का नहीं, मेरा काम है आपके अज़ान को एक तरफ कर देना, एक मंजर की तरफ ले जाके छोड़ देना। दुआ क्या करो कि जब भी फर्श अज़ा पे बैठा करो तो आपकी आंखों से आंसू निकल आया करें, और खुदा न खास्ता अगर किसी की आंखों से आंसू न निकले तो अज़ादारों बिस्तर पे जब सोया करो तो सोने से पहले इस्तिग़फ़ार किया करो और सोचा करो कि मुझसे कौन सी ऐसी गलती हुई है जो मेरी आंखों से हुसैन के लिए चंद आंसू न निकल सके। अज़ादारों हम और आप तो थोड़ी देर लोग सब्र कर लेते हैं, अरे कोई रोने की किसी को पूछना है तो कोई सैयद सज्जाद से पूछे, अज़ादारों सैयद सज्जाद बीमार करबला, अरे जब तक मेरा इमाम जिंदा रहा बोल के आंसू रोता रहा, अगर सामने खाना आया तो करबला कर लिया, ए बाबा अरे कैसे खाऊं इसे, आपको भूखा प्यासा मारा आपकी आवाजें रोने के लिए आवाज हो गई है, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय बस और मजलिस नवाज करते रहेंगे। आप सुनते रहते हैं कि वो वक्त भी आया हुसैन के लिए कि जब कोई न रहा तो हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए, और तमाम बीवियों से जब रुखसत हो लिए और हुसैन रुखसत हो के खैमे से बाहर चले तो चलते चलते हुसैन का रहबार रुका। हुसैन ने छुप कर देखा तो छोटी सी बच्ची सकीना सुबह से कह रही है, अरे जो भी सुबह से गया से वापस ना आया, मेरे बाबा को न ले जा। हुसैन ने सकीना को आगोश में लिटाया, लिटाने के बाद कहा मेरे लाल मेरे सीने पर लेट जा। बाबा क्यों? कहा इसलिए कि आज के बाद ये तुझे सीना नसीब न होगा। क्या बाबा क्यों? कहा इसलिए कि बेटी तू सकीना यतीम हो जाएगी। कमसिनी का आलम है। सकीना सवाल करती है, बाबा इतना तो बता दीजिए कि यतीम किसे कहते हैं? अरे मेरा मौला तड़प गया, कहा मेरे लाल अरे अभी पता न चलेगा यतीम किसे कहते हैं। हाँ जब हुसैन का साथ अरे नौके नेज़ा पे पहुंचा और कोई बचाने वाला न हो, अरे शिवर तमाचे लगा, समझना तू यतीम हो गई। इस रिवायत को यही रोकता हूँ मसाज को, और एक रिवायत बताती है तारीख ने लिखा कि जब जनाबे मुख्तार ने सजर मलौन को गिरफ्तार किया तो उससे सवाल किया, औलाद वाले कहते हैं कलेजे पे हाथ रख के सुनो, अगर तसव्वुर कर लिया तो कलेजा फट जाएगा, रोने के लिए ये रिवायत काफी है। एक मरतबा मेरे मौला ने पूछा, जनाबे मुख्तार ने पूछा, सजर मलौन ये बता कि तूने करबला के मैदान में क्या सबसे बड़ा जोर किया? मलौन है जालिम है मगर कहता है मुख्तार मत पूछो वरना तड़प के मर जाओगे। कहा नहीं मुख्तार सुनो, असर का वक्त था जब मैं वालिद करबला हुआ, लेकिन मेरे हाथ में कोई तलवार नहीं थी, मेरे हाथ में कोई नेज़ा नहीं था, मेरे हाथ में कोई तीर या तवर नहीं था। अरे मैंने करबला में वालिद होते वक्त ज़मीन करबला से 2 पत्थर उठाए और अपनी जेब में रखे। तब फिर क्या हुआ? कभी उस मकाम पे पहुंचा जहां हुसैन अपने रहबार पे बैठे हुए थे लेकिन डगमगा रहे थे। मैं आगे बढ़ा, हुसैन के घोड़े का रहबार थका हुआ काटा और चक्कर
पत्थर काटने के बाद मैंने देखा कि कौन सी ऐसी जगह है कि जहाँ हुसैन के कोई तीर न लगा हो, कोई नेज़ा न लगा हो, कोई भाला न लगा हो। कहा मैंने देखा कहीं पे तलवार, कहीं पे नेज़ा। अरे मैंने देखा हुसैन की पेशानी खाली है। अरे मैंने पत्थर निकाला, अरे निशाना किया, पत्थर को हुसैन के पेशानी पे मारा। अरे जैसे ही पत्थर हुसैन की पेशानी पे लगा, हुसैन ने नमाज सैयदा को पुकारा, नवाब अली को पुकारा। अरे फराद करो, कर लिया, वापस आओ ए भैया वापस। जनाब मुख्तार रोते रहे। एक मरतबा मुख्तार ने कहा, ए मलऊन ये बता कि दूसरा पत्थर कब और कहाँ इस्तेमाल किया। कहा मुख्तार सुनो, जब हुसैन का सर नोके नेज़ा पे बुलंद हो गया, क़याम हुसैनी में आग लग रही थी। बीबी आए खैमे से दूसरे खैमे में जा रही थी, तो मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची चले हुए खैमे से निकली। अरे दामन जला हुआ था, मैंने दूसरा पत्थर निकाला, बच्ची को मारा। अरे बच्ची के घुटने पे पत्थर लगा, अरे बच्ची मुंह के बल गिर गई। अरे फरार करो, कर लिया। ए चचा, ए चचा।